Friends, and welcome back again in the video tutorial. And today in this lecture we are discussing about tools of recombinant DNA technology, and we are going to continue that part. We have discussed about enzymes, we have discussed about vectors. The third tool of recombinant DNA technology is a competent host. So in this lecture today we will be discussing about a competent host, what is the meaning of term competency, what is transformation, and I will be telling you different method of gene transfer. So the title of today's lecture would be competent host and different type of gene transfer with the help of vector and direct method of gene transfer without the help of vector. How we can transfer our gene of interest inside the competent host. So first we will be discussing the idea of competency, that which host is regarded as competent host. So let us start our lecture with the term competent host. See, host in an organism in which our desired gene is going to express. Competent host for transformation with recombinant DNA. Competent host for transformation with recombinant DNA. It could be recombinant or it could be simply gene of interest as well. When we will be learning about different method of gene transfer, I will be telling you either recombinant DNA gene of interest along with vector, or simply gene of interest is directly injected inside the host cell. First, the term competency. What do we mean the term competency, and what is the meaning of term competent host? For example, there is a bacterial cell. Let's say I am taking the example of bacteria, and this is my gene of interest. That gene of interest is recombinant DNA. Gene of interest is in green color, and then there is a vector. This is double stranded. This cell would not be allowing the entry of foreign DNA material inside itself. A cell normally do not allow the entry of foreign DNA inside it. So I can say this cell is not competent. This host is not competent. For example, you want to go at someone's place and that someone is not inviting you, or it is having bodyguard that is not allowing you to enter inside his house. Simply the bodyguard would be the plasma membrane and the integral proteins. Competency is the ability of a cell to alter its genetic by taking up extracellular DNA from its environment. जब भी ये extracellular DNA इसके अंदर चला जाएगा, अब इस सेल का जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा. तो किसी भी सेल की जो एबिलिटी होती है टू अल्टर, टू चेंज इट्स जेनेटिक कंपोजिशन बाय अलाउइंग द अपटेक ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर DNA फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज रेफर्ड एज टू कॉम्पिटेंसी. तो अगर किसी सेल के अंदर वो टेकअप वाली एबिलिटी है तो हम उसे कॉम्पिटेंट होस्ट कहेंगे, और अगर टेकअप वाली एबिलिटी नहीं है तो दैट वुड नॉट बी अ कॉम्पिटेंट होस्ट. तो फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू अल्टर इट्स जेनेटिक कंपोजिशन, its genetic expression, genetic composition, genetic makeup by taking up extracellular DNA, any DNA which is outside from the cell, from its environment. So whenever you have been asked either a host is competent or not, what you will see that either it is able to take up extracellular DNA and to alter its genetics. For example, that was the chromosomal material, and this extracellular DNA has been gone there, and this chromosomal material degrade this chromosomal extracellular DNA. So this host is competent? Answer is no. When extracellular DNA enter inside the cell and the genetics of that cell is altered, only in that case we call that it is a competent host. Is that clear up to here? Right.
So the definition of competency would be the ability of a cell to take up extracellular DNA and alter its genetic makeup. Then come the term transformation. Then other term we are going to discuss here is transformation, and then I will be telling you the method of transformation. See, transformation हम पढ़ते आ रहे हैं from our 3-4 lectures कि ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपली मीनिंग होता है जब किसी बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे, इट्स ए प्रोसेस बाय विच a cell takes up, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो सेल है वो एलियन डीएनए या फिर मैं वर्ड यूज करूंगा नेक्ड डीएनए. अ सेल टेक्स अप a naked DNA fragment from the environment. A cell takes up a naked DNA fragment from the environment. माने जीन ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, कोई भी बाउंडेड प्रोटीन या हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं जा रहे उसमें, राइट. ऑल राइट. तो यहाँ तक तो हमने बताया आपको कॉम्पिटेंसी के बारे में कि ये जो प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या होता है. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेल को कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है. तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे कोई सेल एक नेक डीएनए को टेकअप करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट और उस नेक डीएनए को डाइजेस्ट ना करके इनकॉर्पोरेट कर लेता है इनटू इट्स क्रोमोसोमल डीएनए and incorporates it into its क्रोमोसोमल डीएनए. और सिर्फ इनकॉर्पोरेट ही नहीं करता है, उसको एक्सप्रेस होने का मौका भी देता है. अपना सेलुलर मशीनरी यूज़ करा के उसको एक्सप्रेस भी कराता है. एंड इनकॉर्पोरेट्स इट इनटू इट्स क्रोमोसोमल डीएनए एंड फाइनली एक्सप्रेसेस द ट्रेट which is controlled by incoming DNA, and finally expresses the trait controlled by incoming DNA. So what I told you, incoming DNA, this is a cell here that is naked DNA. For example, this here is naked DNA. That process by which the cell uptake this naked DNA, incorporate it into its genome. For example, after going there, this naked DNA is going to be a part of the, अगर इसके पास कोई भी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस था तो ठीक है. अगर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस नहीं है तो ये जो नेक्ड डीएनए है इट गेट इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ होस्ट सेल. और जब क्रोमोसोमल मटेरियल ये एक्सप्रेस करेगा तो साथ में ये भी प्रोटीन बनाएगा, एज वेल एज एक्सप्रेसेस द ट्रेट व्हिच हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय द इनकमिंग डीएनए. इज दैट क्लियर? सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पहले भी जो डिस्कशन किया था, आज डेफिनेशन पढ़ ली हमने कि जब भी कोई प्रोकैरियोटिक सेल, नॉर्मली हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर का फॉरेन डीएनए एंटर किया जाता है, वो फॉरेन डीएनए एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. आई रिपीट, अगर फॉरेन डीएनए एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. नाउ प्लीज पे अटेंशन. I will love to tell you that there are many kind of host cell. We can include E. coli, we can include yeast, we can include an animal cell, and we can include a plant cell. So many kind of host cell are available for genetic engineering, and the kind of host cell for genetic engineering is decided. It mainly depends upon the aim of cloning protein, upon the aim of cloning experiment. अगर आप एनिमल प्रोटीन एक्सप्रेस कराना चाह रहे हैं तो आप यूकैरियोटिक होस्ट ट्राई करें. आप प्लांट प्रोटीन एक्सप्रेस कराना चाह रहे हैं तो आप प्लांट सेल को ट्राई करें. और आपके पास अगर नॉर्मली प्रोकैरियोटिक जीन है तो आप प्रोकैरियोटिक को ही ट्राई करें. ये एक मतलब नॉर्मल रूल होता है. पर अभी हम पढ़ते रहेंगे कि एनिमल प्रोटीन या ह्यूमन जीन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम ई कोलाई यूज़ कर रहे हैं. तो अगर हम प्रीफरेबल होस्ट की बात करें for the expression of some eukaryotic protein, eukaryotic cell may be the preferred host. For the expression of some eukaryotic gene, eukaryotic cell may be the preferred host. मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ because I want to tell you कि जो yeast होता है that has been extensively used for functional expression of eukaryotic gene. So next statement मैं लिखूँगा that yeast
has been extensively used for the functional expression of eukaryotic gene. Reason being, there are certain advantages because yeast is having certain advantages. तो जो भी आपके पास क्लोनिंग कॉम्पिटेंट होस्ट है वो एक्सप्रेशन प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है. डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्रेशन प्रोटीन, एक्सप्रेशनल प्रोटीन, होस्ट इज डिसाइडेड. होस्ट इज डिसाइडेड. आई विल लव टू मैंशन हेयर. तो मैंने बता दिया कि भाई होस्ट में आपका इकोलाई हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है. इट डिपेंड्स कि आपका जो भी आपका क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. और देन आई टोल्ड यू कि यूकैरियोटिक जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली यूकैरियोटिक होस्ट हम चूज करते हैं. सो यीस्ट के बारे में बात कर रहे थे. यीस्ट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड as competent host for expression of eukaryotic gene. कई बार ना पूछ लेता है कि what are the several advantages to use yeast for the expression of eukaryotic gene. So let us learn about the several advantages. You must be knowing that yeast is a single cellular organism and that is the most simplest organism, most simplest eukaryotic organism. तो जैसे बैक्टीरिया वगैरह को कॉम्पिटेंट होस्ट करना आसान रहता है क्योंकि बैक्टीरिया का जितना भी आपका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल होता है. सिमिलरली यीस्ट को भी कॉम्पिटेंट होस्ट की तरह यूज़ करना क्यों एडवांटेजेस होता क्यों आसान होता है, उसकी क्या एडवांटेजेस होती है अगर वो डिस्कस करें. सबसे पहले तो यही एडवांटेज होगा कि जो यीस्ट है वो सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और वो बैक्टीरिया की तरह ही सिंगल सेल्ड होते हैं. ठीक है, इट इज़ सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड is single celled like bacteria. तो अगर आपसे पूछा जाता है what are the advantages of using yeast as a host in the expression of eukaryotic gene, तो पहला तो एडवांटेज याद रखिए सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है और सिंगल सेल होता है बैक्टीरिया की तरह, पहली ही एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज होता है उसका जेनेटिक कंपोजिशन. जेनेटिकली वेल करेक्टराइज्ड होता है यीस्ट और उसको आप इजी से ग्रो कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. जेनेटिकली वेल करेक्टराइज्ड, easy to grow, genetically well characterized, easy to grow and manipulate. right? और क्या एडवांटेज हो सकता है कि भाई जेनेटिक कंपोजिशन जो है वेल डिफाइंड होता है, उसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, वो सिंगल सेल्ड हो सकता है. इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ईजिली हो जाती है स्मॉल कल्चर में भी और लार्ज कल्चर में भी, because they can be readily grown in small scale culture as well as large scale bioreactor. That is one of the reason. The third reason, can be easily grown or readily grown in small scale culture and large scale bioreactor So that is the reason yeast has been extensively used as a competent host for the expression of eukaryotic gene. Are we done up to here? और सुनिए आप, प्लांट सेल और एनिमल सेल को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए होस्ट ऑफ जीन मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंट. और आई विल लव टू से कि अगर आपके पास प्रोटीन एक्सप्रेशन की बात करें, अगर हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं और हमें प्रोटीन एक्सप्रेशन कराना है तो उस केस में आप प्लांट सेल भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमल सेल भी यूज़ कर सकते हैं और सेल और कंप्लीट होल ऑर्गेनिज्म को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है ईस्ट के अलावा आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है, तो आप आंसर करेंगे दैट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कैन बी आल्सो यूज्ड एज होस्ट इन जीन मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंट. इज दैट क्लियर? ये हो गया बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. अच्छा, एक टर्म और आती है ट्रांसफेक्शन.
अगर मैं देखो ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपका होस्ट है वो क्या है, मेनली प्रोकैरियोट। इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट इज प्रोकैरियोट। अगर आपके पास होस्ट यूकैरियोट हो जाए, उस प्रोसेस के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू यूकैरियोटिक होस्ट। तो पहला जो टाइटल था ऑफ द लेक्चर, व्हाट आर कॉम्पिटेंट होस्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव कवर्ड दैट। देन आपकी एनसीईआरटी में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के बारे में इतना जिक्र नहीं किया, सीधा जीन ट्रांसफर ही यूज़ कर दिया है उन्होंने कॉम्पिटेंट होस्ट में। तो लेट मी नाउ टेल यू अबाउट द मेथड ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन, और लेट मी नाउ टेल यू अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफेक्शन। कुछ मैं आपको बताऊंगा डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, और कुछ मैं आपको बताऊंगा वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र। तो डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र शुरू करते हैं। एक ऐसा जीन ट्रांसफ़र शुरू करते हैं जिसके अंदर आपके पास वेक्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। दो तरीके होते हैं आपके पास अपना जीन ट्रांसफ़र करने का इनसाइड द होस्ट। क्या तो आप किसी वेक्टर के थ्रू, क्योंकि हम वेक्टर्स पढ़ के आए हैं इसलिए वेक्टर के थ्रू पढ़ लेना भी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में आप पढ़ोगे कि वेक्टर्स वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे या जो भी अपने सिलेबस में है उसमें उन्होंने वेक्टर यूज़ किया होगा। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल के लिए एग्रोबैक्टीरियम वो यूज़ करते ही याद है। सो डीएनए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर, फर्स्ट वुड बी DNA mediated gene transfer. The first method of gene transfer would be DNA mediated gene transfer. Can you give me the other name of DNA mediated gene transfer as well? DNA mediated gene transfer में आप वेक्टर यूज करते हैं। सवाल पूछा जाता है कौन सा डायरेक्ट मेथड है, कौन सा DNA mediated है, यहीं से सवाल पूछा जाता है बस आपका। तो मैं पहले बता दूं, ये मैं बताने वाला हूं आपको वेक्टर मीडिएटेड। डीएनए मीडिएटेड का मतलब हुआ वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। कैन यू टेल मी डीएनए इज हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक? डीएनए मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। याद रखना डीएनए मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक, और सिंस डीएनए मॉलिक्यूल इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ सेल, that is your DNA molecule. Being hydrophilic, it is not able to pass through the membrane. So this cell need to be made competent in order to allow the passage of this DNA molecule through its membrane. So this important statement, very important. I will be writing from black color. DNA being DNA loves water, DNA hates water. The answer to that question is DNA loves water. And जो loves water है वो क्या होता है? Philic. DNA being hydrophilic molecule is not able to pass through the membrane. Through the membranes. आपको पता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होता है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं, और हाइड्रोफोबिक एंड आर प्रेजेंट इन द center. So since DNA is a hydrophilic molecule, it is not able to pass through the membrane. So I can say that bacterial cell must be made capable to take up DNA. So bacterial cell must be made capable to uptake DNA. पहले तो यही पढ़ लेते हैं कैसे आप कैपेबल बनाते हैं। What is the role of divalent आयन लाइक कैल्शियम, और वो डीएनए की एंट्री को कैसे एनहांस करता है। इज दैट क्लियर? इन ऑर्डर टू मेक अ सेल कैपेबल टू टेक अप डीएनए, इट हैज़ बीन डन बाय ट्रीटिंग देम विद ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम. दिस इज डन by treating them with a specific concentration of divalent ions like calcium.
वैलेंट आयंस लाइक कैल्शियम, कैल्शियम का क्या रोल होता है, इसके बारे में पिछले 5 साल में 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये जो स्टेटमेंट है विच आई एम गोइंग टू मेंशन इन रेड, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन दैट जीन ट्रांसफर। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम, ये जो डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम होता है ये इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी विद विच DNA enter inside the bacterium through the pores inside the wall. What calcium do? It increases the efficiency by which foreign DNA enters the cell, enters through the pores inside the cell wall. So what I am telling you, अगर आपके पास ये बैक्टीरिया था, आपने इसको अभी मैं एक डायग्राम बना के दिखा दूंगा, कैल्शियम के साथ ट्रीट किया तो जो DNA अपटेक एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है और वो थ्रू द पोर्स ऑफ सेल वॉल जाता है। सो व्हाट इज द होल्सो रोल ऑफ कैल्शियम in making a cell competent? After treating a host with a concentration of calcium, calcium increases the efficiency by which DNA binds or DNA enters inside the bacterium, inside the DNA enters inside the bacterium through the pore inside its cell wall. Is that clear? अच्छा, ये तो कि कैल्शियम का रोल, कैल्शियम क्या करता है, एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, DNA को प्रिसिपिटेट करा देता है। तो ये कोई स्टेटमेंट में मेंशन कर देता हूँ, पॉसिबली कैल्शियम क्लोराइड कॉज DNA टू प्रिसिपिटेट ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल और इट मे इम्प्रूव DNA बाइंडिंग। Possibly calcium chloride enhances DNA precipitation outside the cell. चलो क्या होता है, ये ना एक मेथड पढ़ लेते हैं, हीट शॉक मेथड। एक मेथड पढ़ा देता हूँ आपको DNA मीडिएटेड जीन ट्रांसफर का, जिसको बोलते हैं हीट शॉक मेथड। और उस मेथड में क्या क्या करते हैं, कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ करते हैं, और फिर अलग अलग टेम्परेचर पर जो भी आपके पास प्लेट्स हैं बैक्टीरियल ग्रोथ की जो प्लेट है उसको अलग अलग टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं। तो लेट मी टेल यू अबाउट हीट शॉक मेथड। तो हीट शॉक मेथड में क्या करेंगे, अगर मैं पूरा प्रोसीजर एक चार्ट में बनाऊं, लेट से दिस इज योर बैक्टीरियम हियर, दिस इज योर बैक्टीरियम हियर, राइट, एंड दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया. This bacteria do not have some extra chromosomal plasmid which we call that, right? Now what we do, we first treat this bacterial cell with calcium, and what this calcium would be doing, it would be enhancing the efficiency of DNA uptake through the pores, and I am also treating it with calcium chloride. So this bacterial cell, this calcium chloride would be इंक्रीजिंग द बाइंडिंग ऑफ डेट DNA, वो DNA सॉल्यूशन के अंदर ही डिजोल्व ना रहे, सॉल्यूशन के अंदर फ्लोट ना करता रहे, वो उस DNA को बाइंड कर देता है आउटसाइड द सेल लाइक दिस. कैल्शियम क्या कर देता है, एनहांस अपटेक एफिशिएंसी थ्रू द पोर्स, अपटेक एफिशिएंसी थ्रू द पोर्स. ये क्या करता है, बाइंडिंग ऑफ DNA को एनहांस करता है. एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल हियर. अब इस बैक्टीरियल कॉलोनी को आपने कैल्शियम और कैल्शियम क्लोराइड के ट्रीट करने के बाद आप उसको प्लेट करते हैं. पहले 0 डिग्री पे करेंगे, फिर 42 डिग्री पे करेंगे, फिर 0 डिग्री पे करेंगे. वी प्लेट इट, ट्रांसफर इट एट 0 डिग्री, देन ट्रांसफर इट एट 42 डिग्री, एंड देन लेटर ट्रांसफर इट एट 0 डिग्री. इसी को बोलते हैं हीट शॉक मेथड. जब आप अल्टरनेटली उसको 0 डिग्री, 42 डिग्री और 0 डिग्री पे ट्रांसफ़र करेंगे, कभी बहुत ही चिल्ड और कभी बहुत ही वार्म, तो ये जो प्रिसिपिटेटेड DNA है, ड्यू टू दिस कैल्शियम एनहेंस अपटेक एफिशिएंसी बढ़ गई है, एंड दैट प्रिसिपिटेटेड DNA इज टेकन अप. व्हेन वी
ट्रांसफर्स दिस कॉलोनी ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स, टेम्परेचर के वैल्यू भी याद रखना, 0 डिग्री फॉलोड बाय 42 डिग्री एंड देन बैक टू 0 डिग्री. कैल्शियम क्लोराइड हैव undergo precipitation and this calcium has enhanced the uptake efficiency. तो जैसे ही टेम्परेचर हमने चेंज करना शुरू किया वो डीएनए अपटेक होना शुरू हो जाता है. इस मेथड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हीट शॉक मेथड. तो हीट शॉक मेथड पर आप अल्टरनेटली या रैंडमली आपके जो बैक्टीरियल प्लेट है उनको ग्रो कराते हैं, उनको प्लेस करते हैं 0 डिग्री पर, 42 डिग्री पर और देन बैक टू 0 डिग्री. कैल्शियम का रोल होता है पोर से डीएनए अपटेक एफिशिएंसी को बढ़ा देना और कैल्शियम क्लोराइड का रोल होता है इट पॉसिबली एनहांस द बाइंडिंग ऑफ डीएनए ऑन द वॉल ऑफ सेल. आया इतना समझ? सी याद रखना ये जो डीएनए है, लेट मी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. लेट मी मेक इट इन 2 कलर एंड लेट मी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. क्योंकि मैं वेक्टर मीडिएटेड पढ़ा रहा हूँ इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेंशन करना ज़रूरी है कि भाई उसके अंदर वेक्टर भी है, राइट? So the next statement that recombinant DNA is forced into such cell by incubating the cell with recombinant DNA on ice followed by placing them at 42 degree centigrade which we call heat shock and then putting back them on ice. तो जो heat shock method होता है उसके अंदर 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी को. इज डेट क्लियर? इस रैंडम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन से दिस एनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. बिकॉज ऑफ दिस रैंडम ट्रांसफर देयर इज एनेबलिंग ऑफ बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये होगा डीएनए मीडिएटेड. अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं वेक्टर के बारे में भी यहाँ पे बताऊँ, अब मैं बताऊँगा आपको डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो वेक्टर होता है प्लांट सेल के केस में आप क्या यूज़ करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसियंस. और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसियंस का केस बता देते कि भाई टीआई प्लाज्मिड होता है. टीआई प्लाज्मिड के अंदर टी डीएनए होता है. टी डीएनए कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? क्राउन गॉल डिजीज़. ऐसे ही एक और आपका ना एग्रोबैक्टीरियम जीनस का ही मेंबर होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स. उसका जो प्लाज्मिड होता है बच्चों वो आरआई प्लाज्मिड होता है. तो टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड के बारे में डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसियंस इज टीआई प्लाज्मिड एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से जो आता है वो होता है आरआई प्लाज्मिड. ये क्राउन गॉल डिजीज़ करता है, क्राउन गॉल डिजीज़, और ये करता है हेरी रूट डिजीज़. हेरी रूट डिजीज़. बाकी जितनी भी चीज़ें बताई वो सब सिमिलर है. तो कई बार ये पूछ लेता है आपसे कि जो आरआई प्लाज्मिड होता है वो कौन सी बीमारी कॉज करता है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज हेरी रूट डिजीज़, जबकि टीआई प्लाज्मिड क्राउन गॉल डिजीज़ कर रहा है. तो प्लांट सेल के केस में जो नॉर्मल वेक्टर था वो आपका क्या था? टीआई प्लाज्मिड. इट कुड बी आरआई प्लाज्मिड एज वेल. बैक्टीरिया के केस में आप PBr322, PUC8 जो भी आपको मर्जी. PBr322 इज द वन विच इज़ कॉमनली यूज्ड. ठीक है, PBr322 के बारे में बता ही रखा है, अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ कि वो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है. ई कोलाई के कुछ प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके बनाया था. उसके अंदर आपके पास क्या क्या मार्कर जीन्स होते हैं, क्या क्या मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है एंड ऑल द थिंग्स. तो बच्चे ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जिसको बोलते हैं वेक्टर मीडिएटेड. याद रखना हीट शॉक इज़ द ओनली वन जो वेक्टर मीडिएटेड है. बाकी जितने भी आप मेथड पढ़ोगे वो डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र होते हैं. नेक्स्ट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र और वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र. डायरेक्ट और वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र. तो 2-4 मेथड ये भी बता देता हूँ. यहाँ पर तो सिर्फ डेफिनेशन वगैरह ही पूछने को आता है या आपसे ये पूछने को आता है कि कौन सा वेक्टर मीडिएटेड और कौन सा वेक्टरलेस है. सो फर्स्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र इज़ माइक्रो इंजेक्शन. और लेट मी टेल यू कि माइक्रो इंजेक्शन जैसी टेक्निक आपने पढ़ ली थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. याद है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन? वो एक तरह का माइक्रो इंजेक्शन था. तो उसके अंदर आप क्या करते थे? सिंपली इन द न्यूक्लियस ऑफ oocyte आप स्पर्म को एंटर कराते थे. माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं? इन दिस मेथड अ फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड. अ फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड into the nucleus of animal cell or plant cell using a micro injection or micropipette. The foreign DNA is injected
into the nucleus of the foreign DNA is injected into the nucleus of plant cell or animal cell using a micro injection, or let's call that micropipette or micropipette. पाइपेट एक तरह का सिरिंज होता है जिसमें माइक्रो रीडिंग्स के अंदर आप सैंपल ले सकते हैं. तो अगर माइक्रो इंजेक्शन को मैं यहाँ पर ना आपको बताऊँ कि भाई कैसे करते हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस अ सेल हेयर एंड that's the nucleus of cell. First I will be having a holding forceps here. I am having a forceps which is meant to hold it into position and under the microscope. Similarly जो XI में किया था आपने इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में, using a micropipette, that is the needle of micropipette, DNA has been injected inside the cell. And this here is something like this. Let us make it a pipette like structure here. So using that syringe, using that micropipette, DNA has been directly injected inside the nucleus of cell, and that condition is known as microinjection. So you do not need, this is the holding forceps, right? That's micro injection, that's न्यूक्लियस. अब तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. सो माइक्रो इंजेक्शन में आपको वेक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं अपना डीएनए इनसाइड द प्लांट सेल. जो माइक्रो इंजेक्शन होता है दैट हैज़ बीन कॉमनली यूज फॉर एनिमल सेल. माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज कॉमनली यूज फॉर एनिमल सेल, राइट. मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, माइक्रो इंजेक्शंस आपका यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ oocyte, इन केस ऑफ लेट्स से एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियोनिक सेल है उसके अंदर भी अगर आपको कुछ जीन मॉडिफिकेशन करना है तो आप माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हैं. तो इट हैज़ बीन यूज्ड इन केस ऑफ एग, इन केस ऑफ oocyte एज वेल एज एग और oocyte दो अलग अलग चीज़ें याद रखना. इन केस ऑफ एग्स, इन केस ऑफ oocyte के अंदर इन ऑर्डर टू इनिशिएट समथिंग वी कैन इंजेक्ट molecule or a molecule of DNA, or it has been used in case of embryonic cell as well. फिर माइक्रो इंजेक्शन में एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना, उनका नाम होता है एलिस जेफरीज. तो जो एलिस जेफरी थे उन्होंने 1993 में ही बिलोंग टू ह्यूमन जीनोम सेंटर विच हैज़ बीन लोकेटेड इन द मिशिगन यूनिवर्सिटी USA. उन्होंने क्या किया था, एक माइस को ना एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हुई थी, इनहेरिटेड न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ जो थोड़ी बहुत मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जैसी थी. यूजिंग डैट माइक्रो इंजेक्शन उन्होंने उसको ट्रीट किया था, माने जो भी डिफेक्टेड जीन था उसको रिप्लेस कर दिया था बाय अ नॉर्मल जीन. सो माइक्रो इंजेक्शन में एक स्टेटमेंट और याद रख लेना. माइक्रो इंजेक्शन में प्लीज़ डू रिमेंबर अबाउट वन मोर स्टेटमेंट दैट डॉक्टर एलिस जेफरीज in 1993 cured a inherited neuromuscular disease of mice using microinjection. Dr. Alice Jeffrey in 1993, Michigan University of USA, right, cured inherited neuromuscular disease in mice, and that neuromuscular disease using microinjection, and that neuromuscular disease was somewhat like muscular dystrophy. बताया था मैं DMD gene mutation, muscular dystrophy, right? That neuromuscular disease was somewhat like muscular dystrophy of human. तो पहला जो आपके पास हो गया मेथड, डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, वो हो गया बेटा माइक्रो इंजेक्शन, कि आप सीधा न्यूक्लियस के अंदर जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जो सेकेंड मेथड आप पढ़ोगे दैट वुड बी यूअर जीन गन मेथड. जीन गन मेथड, आप एक गन ले लीजिए जो जिससे जीन ट्रांसफ़र करते हो,
या इसी को बोलते हैं बायोलिस्टिक मेथड। ये नाम है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बायोलिस्टिक मेथड। और इसी को बोलते हैं पार्टिकल गन मेथड और पार्टिकल गन मेथड। तो एक इसके अंदर डिवाइस यूज़ होगा और उस डिवाइस में कुछ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स आपका जो जीन है इट हैज़ बीन बोम्बार्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। और जनरली जो जीन गन मेथड होता है वो प्लांट सेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले जीन गन मेथड में क्या करते हैं मैं ये बता देता हूँ। सेल्स आर बम्बार्ड with high velocity microparticle of gold or tungsten coated with DNA. Cells are bombarded with high velocity microparticles। कौन कौन से माइक्रोपार्टिकल्स यूज होते हैं वो याद रखना है। ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, बाकी आप यूज़ नहीं करते, ऐसा ना हो कि प्लांट उसको एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ कर जाए और आपका रिजल्ट चेंज हो जाए। तो सेल्स आर बम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोटेड विद DNA। तो जो जीन गन मेथड होता है उसके अंदर आप ना सेल्स को बम्बार्ड करते हैं विद माइक्रो पार्टिकल्स। कौन कौन से मेटल यूज़ होते हैं? गोल्ड एंड टंगस्टन। और उस गोल्ड एंड टंगस्टन के साथ आप क्या कोट कर देते हैं? अपने DNA को। एक रिप्रेजेंटेशन बना के दिखा देता हूँ मैं आपको कि भाई कैसे कैसे जो है ये आपका डिवाइस कैसा होता है और वो कैसे कैसे काम करता है, राइट। तो लेट मी मेक अ डिवाइस हियर। Let me make a plate something like this and other plate something like this, right? That here is a nylon tube, I will say, and this is the firing point। अगर मैं इसको बनाना शुरू करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दिया एक पिन होता है जिसको बोलते हैं फायरिंग पिन। दैट इज़ द वन विच इज़ वी कॉल फायरिंग पिन हेयर। उसके बाद आप एक बना दोगे जिसके ऊपर चार्ज होगा, दैट इज़ द वन विच इज़ हैविंग चार्ज। चार्ज के साथ दैट इज़ द वन ट्यूब विच इज़ हैविंग चार्ज। चार्ज के साथ साथ देयर वुड बी अदर नायलॉन ट्यूब हेयर। और यहाँ पर आप अपना कोट कर देंगे DNA अलॉन्ग विद गोल्ड एंड टंगस्टन, आइदर गोल्ड और टंगस्टन। जो गोल्ड थोड़ा महंगा हो जाता है तो देखो ये जो टेक्निक है वो कॉस्टली नो डाउट। टंगस्टन वगैरह कॉमनली यूज़ करते हैं, पर टंगस्टन का लॉन्ग एक्सपोजर ना सेल के लिए टॉक्सिक भी हो जाता है। एनीवेज, फायरिंग पिन, देन द चार्ज ट्यूब, उसके बाद आपका शूटिंग ट्यूब, देन ये पार्टिकल्स। देन अगर मैं आगे बनाना शुरू करूँ, डैट वुड बी हैविंग सर्टेन ब्लॉक्स वुड बी प्लेस्ड हेयर। देन एक आपके पास ना स्क्रीन आ जाती है जो जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग स्क्रीन। दिस हेयर इज स्टॉपिंग स्क्रीन। और यहाँ पर रखा है आपके पास आपका प्लेट, उस प्लेट के ऊपर रखिए सेल्स। डैट इज़ द प्लेट विच इज़ हैविंग सेल्स हेयर। सो व्हाट इज़ द आइडिया? जब भी आप फायरिंग पिन शूट करेंगे, दिस वुड बी हिटिंग ऑन डैट स्टॉपिंग स्क्रीन, डैट वुड बी हिटिंग ऑन स्टॉपिंग स्क्रीन विद हाई वेलोसिटी। जो भी ये नायलॉन का ट्यूब होता है ये यहीं पर रुक जाता है। दिस नायलॉन ट्यूब स्टॉप्स हेयर। और उसके बाद जितने भी आपके पास मेटल कोटेड DNA पार्टिकल्स हैं with high velocity they enter inside the cell। तो जीन गन मेथड में या आपका जो पार्टिकल गन मेथड में क्या होता है, आपके जो सेल्स है दे आर बम्बार्ड with high velocity microparticle of gold and tungsten coated with DNA. Is that clear? That is more suitable for plant cell. जैसे micro injection was suitable for animal cell, that is more suitable
फॉर प्लांट सेल। ठीक है बच्चों, राइट। देखो जनरली टंगस्टन और गोल्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव वगैरह नहीं होते हैं। यू बेटर नो देयर फिजियोलॉजी, ठीक है। तो जितने भी आपके माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए, इसको भी लेबल करना है क्या, दीज आर द माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए। देखो इसके अंदर आपके पास ना माइक्रो पार्टिकल्स यूज़ हुए तो पार्टिकल गन मेथड कह देते हैं। एक आपके ना एक होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक गन कहते हैं, जो आपको अभी नहीं पढ़नी है। तो आप अभी याद रखें, जो सेकंड मेथड होता है दैट इज जीन गन मेथड, और उसके अंदर सेल्स को बम्बार्ड करते हैं विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन विच हैज़ बीन कोटेड विद डीएनए। नाउ as I am telling you, this is more suitable for plant cell, although this technique is very much suitable for plant cell, but this technique is also used to insert gene inside the animal cell as well. एक ना आपका टेक्निक होता है जिसमें ना आप डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल देयर इज ए पेशेंट और उसको ना माउथ कैंसर हो गया है, तो जो भी वुंड्स वगैरह है, वो जो वुंडेड सेल है उनको आप टारगेट करते हैं फ्रॉम सच डीएनए विच इज़ नॉर्मल। जो भी वुंडेड सेल है जिनका डीएनए अल्टर हो गया था, उस डीएनए को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं बाय आप नॉर्मल वन। साथ में देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस विच हैज़ बीन आल्सो गिवन टू द wounded cell by using that particle gun method. Again I am repeating that although it is very much suitable for plant cell, but that can be used for animal cell in order to repair, in order to promote tissue repair of the damaged cell. ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि जो ये particle gun method होता है, this method actually failed to make an impression in the treatment of certain genetic disorder. उनको जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए भी कोशिश किया गया कि जो भी आपका डिफेक्टेड जीन था उसको रिप्लेस कर दिया जाए फॉर्म ए नॉर्मल जीन, और कैसे रिप्लेसमेंट किया जाए बाय जीन गन मेथड, कंप्लीटली फेल्ड। बट इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट इट इज़ हैविंग ए ग्रेट इम्पैक्ट। तो आई विल मेंशन इट फेल्ड टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर, बट makes a good impression in vaccine development, तो वैक्सीन डेवलपमेंट में पार्टिकल गन मेथड भी यूज़ कर लेते हैं माइक्रो इंजेक्शन के साथ साथ। एनीवेज आपको उतना डिटेल ना भी याद है तो कोई इशू नहीं है। आपको क्या याद रखना है, प्लांट सेल के लिए कौन सा सुटेबल है, आंसर इज जीन गन मेथड। जीन गन मेथड में ये जो दो स्टेटमेंट लिखे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माइक्रो इंजेक्शन काहे के लिए सुटेबल है, एनिमल सेल के लिए, और दोनों ही कैसे हैं, वेक्टरलेस है, डायरेक्ट मेथड है। फिर आपको मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में, केमिकल मीडिएटेड बारे में, और लाइपोसोमल मीडिएटेड। तीन और मेथड है डायरेक्ट मेथड। वन इज इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक सेल है, लेट्स से देयर इज ए प्लांट सेल, और प्लांट सेल अलाउ ही नहीं कर रही है फॉरेन डीएनए को आने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, आप उसको करंट लगाना शुरू कर देंगे, और करंट लगाने से उसकी जो मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी वो चेंज हो जाएगी और आपका डीएनए एंटर करना शुरू हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज पोर्स बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट वी कॉल दैट, इलेक्ट्रोपोरेशन। जो थर्ड मेथड होता है डायरेक्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोपोरेशन। What is electroporation? In electroporation, short electrical impulse of high field strength are given. Short electrical impulse of high field strength are given. ठीक है बच्चों। Now इन इलेक्ट्रोपोरेशन जनरली जो परमिबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन में वर्ड यूज़ करूँगा, द परमिबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज इंक्रीज बाय क्रिएटिंग ट्रांजिएंट पोर्ट। बाय क्रिएटिंग ट्रांजिएंट पोर्ट, देखो होता क्या है, आप अगर नॉर्मल एक बायलिपिड लेयर को देखेंगे, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कहीं पर इसके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा और कहीं पर इसके पास हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। तो सेंटर में कैसा पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक, और कॉर्नर्स में कैसा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक। आप बहुत ही स्मॉल एरिया को टारगेट करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एरिया विच यू हैव बीन टारगेटिंग, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपने अप्लाई किए,
they would be folding in the lipid bilayer. They would be folding in the lipid bilayer, and after folding, what would happen? It would become something like this. It would become something like this. अब ये जो आपके पास हाइड्रोफोबिक एंड है, ये सारे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और हाइड्रोफिलिक एंड चले जाएंगे उधर. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, दिस मेम्ब्रेन कुछ इधर फोल्ड हो गया एंड सम पार्ट इज फोल्डेड लाइक दिस. सो एक ट्रांजिएंट पोर बन गया है बेटा, एंड थ्रू दिस ट्रांजिएंट पोर, now this is a transient pore which has been formed, and through this transient pore easily our DNA can be going inside. So mainly जो short impulse होती है वो क्या करती है? They creates transient pore. और कैसे transient pore करती है? By folding of lipid bilayer. So ये सारा का सारा हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट हो गया. DNA is also हाइड्रोफिलिक molecule, easily can pass. तो जब आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देके किसी मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांजिएंट पोर बना देते हैं और पैसेज ऑफ डीएनए को इजी कर देते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोपोरेशन. इज दैट क्लियर? प्लीज से यस और नो. नेक्स्ट जो मेथड होगा, नेक्स्ट मेथड वुड बी केमिकल मीडिएटेड. अब दो मेथड हो बचे हैं छोटे छोटे से. एक में केमिकल यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द अपटेक ऑफ डीएनए, और दूसरे में एक लिपिड बैग यूज़ करते हैं to increase the uptake of DNA. Next method is chemical mediated. ये सारे के सारे डायरेक्ट मेथड हैं. प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज. यहीं पर क्वेश्चन गलत होता है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ही पूछता है. केमिकल मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफ़र. और केमिकल मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफ़र में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द सेल, प्रोटोप्लाज्म वगैरह को आपको पता होगा. दिस इज़ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर करना चाहता है, वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है. प्लीज़, आई विल बी गिविंग यू अ ट्रीट, प्लीज़ अलाउ मी टू कम इनसाइड. नो. देन ही शो समथिंग, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल पैग. एंड आफ्टर वॉचिंग दैट पैग, he completely get emotional and the DNA uptake start. What is it PEG? PEG is polyethylene glycol. This polyethylene glycol enable the protoplasm fusion. It enable protoplasmic fusion. और प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन से क्या होता है? डीएनए अपटेक हो जाता है. तो केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द केमिकल हैज़ बीन यूज फॉर द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए, आंसर वुड बी पैग, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. एंड व्हाट इट डू? इट एनहांसेस, इट एनेबल द प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन. तो आई विल बी मेंशनिंग देयर सर्टेन केमिकल लाइक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल विच हेल्प इन प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन एंड हेल्प फॉरेन डीएनए टू एंटर इनसाइड द सेल. जो लास्ट मेथड बचता है बेटा वो है आपका लाइपोसोमल मीडिएटेड. लाइपोसोमल मीडिएटेड, दिस इज आल्सो डायरेक्ट, राइट, जीन ट्रांसफर. डीएनए एंड जीन दोनों एक ही चीज़ है, राइट. जीन का डेफिनेशन मत पूछना अब, दैट्स वेरी बेसिक. अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज़ बीन कोडिंग और विच हैज़ बीन एक्सप्रेसिंग ए पर्टिकुलर करेक्टर, अ ट्रेट, वी कॉल दैट जीन. लाइपोसोमल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर. अगर मैं लाइपोसोम की बात करूँ, व्हाट इज लाइपोसोम? Liposome is a lipid bilayer bag. That's a lipid bag which is bilayered. अगर मैं लाइपोसोम बनाऊं, लाइपोसोम would be something like this. Let's say I'm trying to make a liposome. लिपिड bilayer होगा. अभी एक लेयर बन रहा है और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर जितना भी अंदर का पार्ट होगा दैट इज़ नॉट हैविंग एनी डीएनए, दैट इज़ ओनली एंड ओनली हैविंग वैकेंट स्पेस, राइट. दिस लिपिड बाइलेयर और जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ वैकेंट. द सेंट्रल पार्ट, दिस इज़ वैकेंट हेयर. तो आपने क्या किया, इसको मैं सिंपली ऐसे बना देता हूँ कि आपके पास लिपिड बाइलेयर है और इस वैकेंट एरिया के अंदर आपने अपना डीएनए प्लेस कर दिया. नाउ दिस लिपिड बाइलेयर वुड बी फ्यूजिंग विद द प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट.
एंड दिस डीएनए अपटेक वुड बी अनेबल्ड। तो जब लाइपोसोमल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की बात करते हैं, व्हाट आर लाइपोसोम्स? दीज आर द लिपिड बैग, double layered lipid bilayered and with a vacuum space, with a vacant space. DNA has been put, DNA is enclosed in the bag of lipid. What you do? DNA is enclosed in lipid bag first thing, and later on bag, right, and later on these lipid bag which is having my gene of interest, they actually fuse with the protoplasm of host. These lipid bag fuses with the protoplasm of host. Lipid bags fuses with प्रोटोप्लास्ट। ये होगा आपका लाइपोसोमल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो व्हाट यू लर्न टुडे, आपने पहले पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी टू अपटेक सम फॉरेन डीएनए, देन ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरेन डीएनए ट्रांसफर, इंटीग्रेशन इनटू क्रोमोसोम एंड एक्सप्रेशन ऑफ डेड जीन, देन वेक्टर मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। सबसे पहले आपने पढ़ा वेक्टर मीडिएटेड हीट शॉक मेथड, डोंट फॉरगेट अबाउट those TI plasmid and IA plasmid, and then direct method of gene transfer, उसमें आपने पढ़ा माइक्रो इंजेक्शन suitable for animal cell, gene gun method suitable for plant cell, electroporation mainly suitable for plant cell, and then two more, one was chemical mediated and second was liposomal mediated, ये भी plant cell के लिए करते हैं। ये हो गया method of transformation, और यहाँ पर complete हो गए आपके tools of recombinant DNA technology। अब कल के लेक्चर में पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिंसिपल्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज़ पढ़ लिया है, अब ये जो चीज़ें सीखी है, इन सब चीज़ों को सीख कर हम पहले किसी सेल से डीएनए आइसोलेट करेंगे, उसको कट करेंगे, उसको क्या नाम है फिर सेपरेट कर लेंगे, उसको लाइगेट कर लेंगे। पीसीआर भी पढ़ना बाकी है, अभी पीसीआर भी पढ़ना बाकी है, वो पीसीआर उसी के साथ साथ पढ़ते जाएंगे और कैसे कंप्लीट एक प्रोसेस रन करते ये पढ़ लेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्लास इज़ ओवर, थैंक यू।